જોયું ભાઈ જેસન, આ છે અમારું મેક ઇન ઇન્ડિયા. વાહ 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 વાહ, ભારતે તો કમાલ કર્યું. હા, મને તો લાગ્યું કે ભારત ખાલી સાપોનો દેશ છે, એની અંદર ચારે બાજુ દૂર 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 અંધશ્રદ્ધા એવું બધું જ હશે. મંદિર અને મસ્જિદની બહાર ભિખારીઓની લાઈન, મને તો એવું લાગતું હતું. ઓ ભાઈ, તને એમ છે કે ભારતમાં બધું આવું બધું જ ચાલે છે એમ? અમે વિકાસ કર્યો જ નથી. તું કયા યુગમાં જીવે છે ભાઈ? તું અમારી સંસ્કૃતિને અંધશ્રદ્ધા કહે છે, અમારી દરિયાદિલીને માગનારાઓનો દેશ કહે છે, અમારા વાઇલ્ડ લાઈફ માટેના પ્રેમને તું સાપોનો દેશ કહે છે. ભાઈ, માનવ માત્ર પ્રેમને પાત્ર એ અમારી સંસ્કૃતિ રહી છે. અને તને જો વિશ્વાસ ના આવતો હોય ને, તો એકવાર વૃંદાવન અને મથુરાના મંદિરોની નગરીમાં જઈ આવ. તને સ્વયં રાધા કૃષ્ણના પ્રેમની સાક્ષી મળી જશે. અરે એકવાર તો તાજમહેલની મુલાકાત લઈ આવ. પંજાબનો સુવર્ણ મંદિર, દિલ્હીનો કુતુબ મિનાર, લાલ કિલ્લા, ગુજરાતનો રાસ, અરે ભવ્ય ભવ્ય વારસો. એકવાર અમારા કાશ્મીર, ધરતીના સ્વર્ગ પર તો બધા તને જીવત સ્વર્ગની અનુભૂતિ કરાવશે. અરે ભાઈ, અમારા ભારત પાસે જે છે ને એ તો બીજે ક્યાંય નથી. ભારતમાં 22 ભાષા બોલાય છે ને 1652 બોલ્યો. તે છતાં દરેક ભારતીયોનો એક જ સ્વર છે, એક જ સ્વર છે કે અમે ભારતીય છે. એ અમારું ભારતીયપણું છે, અમારી સંસ્કૃતિ છે. અરે ભાઈ, એકવાર તો ભારત ભ્રમણ કરીને જો. વાહ 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 વાહ, મારા ભારત દેશના કોઈ આટલા સારા વખાણ કરી શકે એ કોઈ ભારતીય જ હોય. બ્રધર, તારું નામ શું છે? બસ, તે કહ્યું તું ને મિસ્ટર ઇન્ડિયા, મારું નામ ભારત છે. પણ તારું નામ શું છે? મારું નામ જયસિંહ છે. જયસિંહ? હા, મને જયસિંહ નહોતું ગમતું એટલે મેં ફોરેનમાં જઈને મારું નામ જેસન પાડ્યું. પણ હવે મને મારા ભારત દેશ ઉપર ગર્વ છે. મારું નામ જયસિંહ છે, એનો મને ખૂબ જ આનંદ છે. ભાઈ જયસિંહ, તારી જેમ દેશનો દરેકે દરેક યુવાન આવું વિચારતો થઈ જશે ને, એ દિવસથી દેશ બમણી પ્રગતિથી કરશે. ભાઈ, હવે છે ને પહેલ આપણે કરવાની છે. દેશે આપણા માટે શું કર્યું એના કરતાં આપણે દેશ માટે શું કર્યું ને એ વિચારવાની જરૂર છે. તને ખબર છે, આજે આપણો દેશ માત્ર આંગળીના ઈશારાથી પૂરે વિશ્વ સાથે જોડાઈ રહ્યો છે. ઇન્ટરનેટથી, મોબાઈલ નેટવર્ક, બેન્કિંગ, સમગ્ર વિશ્વથી, સોયથી સબમરીન સુધીની ડિજિટલ ઇન્ડિયા દ્વારા દેશ આગળ વધી રહ્યો છે. ગામડાથી શહેર, શહેરથી દેશ અને દેશથી વિશ્વ સુધી ડિજિટલ ઇન્ડિયાના માધ્યમ દ્વારા. આવ તને બતાવું ડિજિટલ ઇન્ડિયા. जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई. तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई. देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था. धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था. सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई. पहले जन्मी है जहां पे कला. अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा. यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया. भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया.
शलोक गुरबाणी और अजान। जहाँ दिन निकले सुनकर शलोक गुरबानी और अजान, जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान। अरे आज नहीं है साच को चाहे देख ले सारी दुनिया। It happens only in India. It happens only in India. यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भंगड़ा बाबा, यहाँ की लावनी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। વાહ 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 વાહ, ખરેખર હો, આપણા ભારતીયો તો ખૂબ જ આગળ છે. સાચેમાં સબસે આગે હે હિન્દુસ્તાની. ભાઈ સાચી વાત છે, પણ હવે પ્રગતિ થઈ છે તો આપણે સાથે રહીને કામ કરવું પડશે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ તરીકે કામ કરવું પડશે. લગનથી, મહેનતથી ને ધગશથી કામ કરવું પડશે. એ કેવી રીતે? ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિની જેમ. હા ભાઈ, ભાઈ નાના નાના સેવાના કામો દેશને આબાદ કરે છે. ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિના સ્થાપક શ્રી સુરેન્દ્રસિંહ રાજપૂત થકી. ચાલ, હું કંઈ વધારે કહું એના કરતાં તને એના પર ડોક્યુમેન્ટરી જ બતાવી દઉં. દિનેશભાઈ તમે પણ જોજો. હા, છેલ્લા 3 દાયકાથી સેવા કાર્યોમાં અમૂલ્ય યોગદાન, અવિસ્મરણીય અને અદ્ભુત સેવાકીય પ્રવૃત્તિ, કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ દરેક નાગરિક સુધી મૂળ સ્વરૂપે પહોંચાડવાના ભગીરથ કાર્યો. આ દરેક કાર્યમાં અભૂતપૂર્વ કીર્તિમાન સ્થાપિત કરતી સંસ્થા એટલે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ.
ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિના સ્થાપક શ્રી સુરેન્દ્રસિંહ રાજપૂત જાહેર જીવનમાં 5 દાયકાનો અનુભવ, અમદાવાદ શહેર અને રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં 3000થી પણ વધારે કિલોમીટરની પદયાત્રા દ્વારા વ્યાપક જનસંપર્ક, તેમણે વ્યાપક લોકચાહના પણ મેળવી છે. યુવાન કાર્યકર તરીકે નવનિર્માણ આંદોલનમાં સક્રિય હિસ્સેદારી નોંધાવી, ત્યારબાદ સતત જનસેવામાં કાર્યરત રહીને અદ્ભુત ચાહના મેળવી. ધારાસભ્ય તરીકે પણ ચૂંટાયા. જાહેર સેવાના ક્ષેત્રમાં પરિણામલક્ષી કામગીરી દ્વારા તેમણે એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી છે. સામાન્ય પ્રજાજનને તેની વહીવટી જરૂરિયાતો અને નાગરિક સુવિધાઓ અપાવવામાં મદદરૂપ થવા માટે તેમના માર્ગદર્શનમાં યુવાન કાર્યકરો હંમેશા તત્પર રહે છે. એવા બાહોશ પ્રખર કાર્યકર્તા, દીર્ઘદ્રષ્ટા શ્રી સુરેન્દ્ર રાજપૂતજી ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિના સંસ્થાપક પ્રમુખ છે. ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ અમદાવાદમાં હોવા છતાં ગુજરાતના છેવાડાના નાગરિક સુધી પહોંચવાનો નિરંતર પ્રયત્નો કર્યા છે. પ્રત્યેક નાગરિકની સહભાગીદારી સાથે સમાજ વિકાસ, વ્યક્તિ વિકાસ અને રાષ્ટ્ર વિકાસના કાર્યોમાં હંમેશા પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે. ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિના સંચાલનમાં અભૂતપૂર્વ સહયોગ, સમય અને સાથ મળ્યો છે સંસ્થાના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખશ્રી, મહામંત્રીશ્રી, મહિલા પ્રમુખશ્રી અને કાર્યકરોનો. તેમના અથાગ પ્રયત્નો વડે આ સેવા અભિયાનને એક મોટા વટવૃક્ષનું સ્વરૂપ મળ્યું છે. સંસ્થા પોતાના 5 આદર્શો સામર્થ્ય, સ્વચ્છતા, સુરક્ષા, સ્વરોજગારી અને સ્વાભિમાન સાથે નિરંતર ઊંચા શિખરો સર કરી રહી છે. ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિએ 5 સંસ્થાઓ પણ તૈયાર કરી છે. રિયલ એસ્ટેટ એસોસિએશન, વિકાસ ગ્રાહક સુરક્ષા અને સંશોધન કેન્દ્ર, NR ફિઝિયોથેરાપી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ન્યૂ ગુજરાત સેવા સમિતિ અને ધી ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ ફોર ધ મેનકાઇન્ડ. આ 5 સંસ્થાઓ હંમેશા તત્પર રહે છે નાગરિકના રોજબરોજના પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓનું સમાધાન કરવા. ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નિદર્શનમાં કેન્દ્ર સરકારની બીજી તમામ યોજનાઓનો અમલ કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ બહુ જ સુંદર રીતે કામ કરી રહી છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના ડિજિટલ ઇન્ડિયાના સપનાને સાકાર કરવા ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ હંમેશા તત્પર રહે છે. સંસ્થા જનસંપર્ક કલ્યાણ કેન્દ્ર હેઠળ ડિજિટલ ઇન્ડિયાની તમામ સુવિધાઓ દરેક નાગરિકને ઉપલબ્ધ કરાવી છે, જેવી કે સંખ્યાબંધ નાગરિકોના આધાર કાર્ડ બનાવ્યા અને સુપરત કર્યા, હજારો નાગરિકોના ઇલેક્શન કાર્ડ બનાવ્યા અને સુધારી આપ્યા, ઘણા બધા નાના વેપારી વર્ગ, ફેરિયાઓ, લારી ગલ્લાવાળાઓને પાન કાર્ડ અપાવ્યા, પાસપોર્ટ, મની ટ્રાન્સફર, જન્મ પ્રમાણપત્રના સુધારા, જાતિનો દાખલો, ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન, મેરેજ સર્ટિફિકેટ, નોટરી, ગુમાસ્તા ધારાનું લાયસન્સ, SSI સર્ટિફિકેટ, ગેજેટ, આવકનો દાખલો વગેરે જનસંપર્ક કલ્યાણ કેન્દ્ર હેઠળ ડિજિટલ ઇન્ડિયાની તમામ સુવિધાઓ નાગરિકને ઉપલબ્ધ કરાવે છે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ. આ ઉપરાંત ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ રક્તદાન શિબિર, નેત્રદાન શિબિર, હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પ, ગરીબો માટે કીટ વિતરણ તથા સાક્ષરતા અભિયાન જેવા કાર્યક્રમો કરીને ગરીબ અને નિરક્ષર નાગરિકોના લાભાર્થે ભગીરથ કાર્ય કરી રહી છે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ. કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકારની તમામ યોજનાઓને સરળ સ્વરૂપે સમજાવીને દરેક નાગરિક સુધી પહોંચાડવામાં દરેક પ્રકારે મદદરૂપ થાય છે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ. સંસ્થા માટે ગૌરવની વાત છે કે જરૂરિયાતમંદ નાગરિકો માટે 24 કલાક તેઓ સેવા આપી રહ્યા છે. સંસ્થા જાતિ, ધર્મ અને વ્યક્તિના તમામ ભેદભાવથી પર સર્વધર્મ સમભાવ અને વસુધૈવ કુટુંબકમ જેવા સિદ્ધાંતોના અમલ સાથે ચાલે છે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ. सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो, ये काम है डिजिटल इंडिया का. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે ડિજિટલ ઇન્ડિયાના 52 સૂત્રીય કાર્યક્રમોના અમલની જે ઘોષણા કરી છે તે કાર્યક્રમોને
દરેક નાગરિક સુધી પહોંચાડવા કાર્યરત છે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના આહવાનથી સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘે યોગ ડેની જે જાહેરાત કરી છે તે પ્રમાણે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ પણ યોગનું સંચાલન કરી રહી છે. આપણી મહામૂલી સંસ્કૃતિ આયુર્વેદ જેવા વારસાની સાચવણી કરી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારની મહત્વકાંક્ષી યોજનાઓનું અમલીકરણ કરાવવું અને તેનો વ્યાપક પ્રસાર અને પ્રચાર કરવો એ ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિએ પોતાનું કર્તવ્ય સમજ્યું છે. તેનું આયોજનપૂર્વક પ્રસાર અને પ્રચારનું કાર્ય કરવાનું બીડું ઝડપ્યું છે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિએ. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના વિકાસ પથ સુધી સામાન્ય માણસને દોરી જવાનું કાર્ય કરવા માટે તેઓ પોતે તથા તેમના નેજા હેઠળ ચાલતી સેવા સંસ્થાઓને ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ સતત મદદરૂપ થાય છે. વર્લ્ડ યુથ કોન્ફરન્સમાં બે વખત સહભાગી થઈને શ્રી સુરેન્દ્ર રાજપૂતજીએ યુવાનોની શક્તિને વિકસાવવાના કામો અને યુવાનોને યોગ્ય તક મળી રહે તે માટેના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. સેવાકીય પ્રવૃત્તિ દ્વારા જાહેર ક્ષેત્રના અગ્રણીઓમાં આપ મોખરાનું સ્થાન ધરાવો છો. ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ સંસ્થાના કાર્યોની એક ઝલક. મહિલાઓને સિલાઈકામ અને લઘુ ઉદ્યોગ વિશે જાણકારી આપવામાં આવે છે. જરૂરિયાતમંદ અને નિરાધાર પરિવારને અનાજની સહાયતા કરવામાં આવે છે. સંસ્થાના સભ્યોને જરૂર પડે ત્યારે 10,000 સુધીની રોકડ લોન આપવામાં આવે છે. પાઠ્યપુસ્તકો અને નોટબુકોનું રાહત દરે વિતરણ કરવામાં આવે છે. શિક્ષણ, રમતગમત તથા જીવનના મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં કામ કરવાવાળા વિદ્યાર્થીઓને પુરસ્કાર અને પ્રમાણપત્રથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકાર તથા રાજ્ય સરકાર તરફથી મળતી આર્થિક સહાયતા, સબસિડી, બેંક લોન અને રોજગારને લગતી તમામ સુવિધાઓની જાણકારી નાગરિકોને આપવામાં આવે છે. સંસ્થા દ્વારા રોજગાર કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જરૂરિયાતમંદ લોકોને નોકરી આપવામાં સંસ્થા સહાયતા કરે છે. સંસ્થા દ્વારા સ્વાસ્થ્યલક્ષી શિબિરોનું આયોજન કરી નાગરિકોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. શારીરિક દ્રષ્ટિથી જે વિકલાંગ છે તેમના માટે સંસ્થા હંમેશા મદદરૂપ રહે છે. જનજાગૃતિ અભિયાનના માધ્યમથી નાગરિકોને કાયદો, વ્યવસ્થા અને સ્વચ્છતા ઝુંબેશની વિશેષ જાણકારી આપવામાં આવે છે. જીવદયા તથા ગૌરક્ષા માટે સંસ્થા હંમેશા જાગૃતતા ફેલાવે છે. ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિની ભવિષ્યની યોજનાઓ. જેનરિક દવાઓના કેન્દ્રોની સમગ્ર ગુજરાતમાં સ્થાપના કરવી, જેથી જરૂરિયાતમંદ લોકોને જીવન જરૂરી દવાઓ સસ્તામાં આપી શકાય. સંસ્થા એક મોબાઈલ વેનની સ્થાપના કરવા માંગે છે, જેથી કરીને જરૂરિયાતમંદ લોકોને જીવન જરૂરી ખાદ્ય સામગ્રી રાહત દરે આપી શકાય. સંસ્થા દ્વારા સેવા સહકાર વિષયક એક પત્રિકા પ્રકાશિત કરવા માંગે છે, જેથી કરીને સંસ્થાના કાર્યો અને યોજનાઓની જાણકારી નાગરિકોને આપી શકાય. સમાજ વિકાસની પરંપરાને વરેલી ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિએ સમાજ વિકાસના કાર્યો સાથે કરેલી પ્રગતિ આજે સમાજમાં એક માઇલસ્ટોન સમાન છે. સંસ્થા ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે છે અને ભવિષ્યમાં પણ કરતી રહેશે. વર્તમાન કેન્દ્ર સરકાર તથા રાજ્ય સરકારની તમામ વિકાસલક્ષી યોજનાઓ વિશે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિ સેવાભાવથી સમર્પિત છે. સમાજના વિવિધ વર્ગ તરફથી ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિને સમર્થન મળ્યું છે. માનવ સેવા અને લોક જનજાગૃતિના કાર્યો, આદર્શો દલિતો, વંચિતો, શ્રમજીવીઓ તથા મહિલાઓ અને બાળકોના જીવન વિકાસમાં મૂલ્યવાન સહયોગ રહ્યો છે ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિનો. આવી માતબર સંસ્થા ગુજરાત રાજ્ય સેવા સમિતિને કોટી કોટી વંદન. હવે તો તું માનીશ ને કે અમારો દેશ આગળ હતો, છે ને રહેશે જ. મારી ભૂલ થઈ ગઈ. તમે જે સજા આપવા માંગતા હો ને હું સ્વીકારીશ. ભાઈ,
અમારી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે અમે સજા નથી આપતા, અમે પ્રેમ આપીએ છીએ. આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. ये है मेरा इंडिया. ભારતની તો મજા જ અલગ છે. અહીંયા તો બારવટિયા પૂજાય છે ભલા માણા. અહીંયા સાધુ સંતો, અને કદાચ જો વિદેશવાળા કહેતા હોય ને તો વિદેશવાળાને ખબર નથી કે અમારા આ મોદી સાહેબ છે ને એ એવા જાદુગર છે ને કે એ હવામાંથી દવા બનાવશે. હા, અરે એની ક્યાં વાત કરવી ભલા માણા, વિચાર કરી લો કેટલી બધી બુદ્ધિ. પેલા બહેનો જેટલા બેઠા ને સાંભળી લેજો બહેનો, પેલા તમારા ઘરવાળાને તમે એમ કહેતા કે બાવા પાડી નાખો, પાડતા હતા? ઝાડુ હાથમાં પકડો તો પકડતા હતા? તરત એમ કહેતા હતા હું શેનો ઝાડુ હાથમાં પકડું? પણ જ્યારથી મોદી સાહેબે સ્વચ્છતા અભિયાન ઉપાડ્યું ત્યારથી કોઈ ના પાડે છે? જો હા, હું કામ ના પાડે? તમારે તો શાંતિ ને. એ ખરેખર મજા થઈ ગઈ હો, બહેનોને શાંતિ થઈ ગઈ. ભાઈ પણ સાહેબ, ભારત અને એમાંય ગુજરાત, ભારતની વાત તો કંઈક અદ્ભુત છે. કદાચ જો ગુજરાતની વાત કરીએ ને તો રૂપાલા સાહેબ, મારી કલ્પના એવી છે કે આ ધરતી કેવી હશે, આ ધરતીની ધૂળની શું તાકાત હશે કે અમુક વર્ષો પહેલા કદાચ જેને વિઝા આપવાની ના પાડતા હોય અને એના માટે જ વ્હાઇટ હાઉસની અંદર 10 કરોડના ખર્ચે ડિનર તૈયાર થતું હોય. સમજાય તો તાળી પાડજો. અમુક સમય પહેલા વિઝા આપવાની ના પાડતા હોય ને એમના માટે જ પછી વ્હાઇટ હાઉસમાં 10 કરોડના ખર્ચે ડિનર તૈયાર થતું હોય, અને ત્યારે ઓબામાજી એમ કહેતા હોય કે પ્લીઝ કમોન, આવો ડિનર કરવા, અને ત્યારે આપણા આમ મૂછે તાવ દેવાનું મન થાય ને એવા મોદી સાહેબ એમ કહેતા હોય કે ભાઈ ડિનર તમે બધા કરો, માર તો ઉપવાસ છે. ડિનર તમે બધા કરો, મારે ઉપવાસ છે. ને ત્યારે ઓબામાનું મન એવું કહેતું હશે, એનો આત્મામાંથી અવાજ આવતો હશે કે આ 10 કરોડનું ડિનર છે, આ ઓબામાનું ડિનર છે. અને ત્યારે આપણા મોદી સાહેબ એમ કહેતા હશે ડિનર ઓબામાનું છે પણ ઉપવાસ છે ને એ તો મારી અંબામાનો છે. ભલા માણા, મારી અંબામાના ઉપવાસ. હા ભાઈ, ઈ છે, ઈ ધરતી છે. આ ધરતીની ધૂળની તાકાત છે. આ ધરતીની ધૂળમાં આળોટીને આપણે બધા મોટા થયા છે. આ ધરતીનું ઋણ આપણે જેટલું ચૂકવી શકીએ એટલું ચૂકવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આ ધરતીનું ઋણ કેવી રીતે અદા કરી શકાય એનો એક દાખલો કે ભલા માણસ વિચાર કરો. વાહ, આ ધરતીની ધૂળની શું તાકાત હશે ભલા માણસ વિચાર કરી લેજો કે એક યુવાન એમ કહેવાય સરહદની માથે શહીદ થઈ જતો હોય, એક યુવાન સરહદની માથે શહીદ થઈ જતો હોય, અને એ યુવાનનું એમ કહેવાય કે જ્યારે એની ડેડ બોડી જ્યારે આવતી હોય એના વતન, એને ગામ, અને તેથી આવીને કર્નલ સાહેબ એમ કહેતા હોય કે આ તમારો દીકરો વતનને માટે, બોમ્બને માટે કામ આવી ગયો. અને ત્યારે આ સરકારશ્રીએ તમને આ ચેક આપ્યો છે વળતર રૂપે, અને ત્યારે એ જનેતા એટલું કહેતી હશે, ભારત ભૂમિની જનેતા, એ ભારત ભૂમિની જનેતા એટલું બોલી હતી કે તમે આ ચેક આપી અને વળતર તમે વસૂલ કરવા માગો છો, વળતર આપવા માગો છો. ના બાપ, આનું વળતર એમને ન ચૂકવાય. એ ચેક તમે પાછો લઈ જાઓ. તમે પાછો શું કામ આપો છો? અને ડૉક્ટર સાહેબ ત્યારે જનેતાએ એમ કીધું હતું કે મારો દીકરો સરહદની માથે શહીદ થઈ ગયો મારા વતન માટે, બોમ્બ માટે, અને એનું વળતર એમ ન ચૂકવાય. આ બીજો મારો દીકરો છે ને 6 મહિનાનો ઘોડિયામાં રમે છે ને, એ 20 વર્ષનો થાય ને તેથી એને તમે આર્મીમાં ભરતી કરજો, અને એ જેથી વતનને માટે લડતો હોય, એ કદાચ 2-5 ને ઢાળી દેતો હોય, અને તેથી એમ કહેવાય કે મને એમ લાગશે કે સાચું વળતર હવે મળ્યું ભલા માણસ. એ આ ભૂમિ છે. અહીંયા એવી જનેતાઓ છે. હમણાં જ ભાઈ અહીંયા વાતો કરતા હતા ને 2 બાળકો, એમાં એક ફોરેનર ને એક આપણો ઇન્ડિયન, એ 2 વાતો કરતા હતા. કહેતા હતા કે તમારા ઇન્ડિયામાં શું છે. અરે ઇન્ડિયાની વાત કદાચ કરવા જાય ને તો 1893 ની અંદર આપણા ભારત ભૂમિનો એક નબીરો
સ્વામી વિવેકાનંદજી જ્યારે શિકાગો ગયા 1893 ની અંદર, જેથી શિકાગો ગયા અને શિકાગોની અંદર એમ કહેવાય કે જ્યારે એ હોલની અંદર જ્યારે પ્રવચન બધાને કરવાનું હતું અને ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદનો વારો આવ્યો ને તો બધા એમ બોલતા હતા, બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર નહોતા બોલતા, બધા એમ કહેતા હતા ઇંગ્લિશમાં બ્રધર સિસ્ટર કે ઇંગ્લિશમાં કહેતા જેન્ટલમેન કહેતા હતા. પણ આપણા સ્વામી વિવેકાનંદનો વારો આવ્યો ને ત્યારે એણે ઇંગ્લિશમાં ભાઈઓ ને બહેનો શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો ને એટલી તાળીઓ પડી હતી સાહેબ, 5 મિનિટ તો તાળીઓમાં નીકળી ગઈ હતી. અને ત્યારે સોનાના પૂઠાવાળી દિલીપભાઈ, સોનાના પૂઠાવાળી ડિક્શનરી આપી ત્યાંના ભૂરિયા હોય વિવેકાનંદજીને કે આ ડિક્શનરી તમે લેતા જાઓ. અને ત્યારે કીધું હતું કે શું છે આ ડિક્શનરીમાં? તો કે બધાય ગુજરાતી શબ્દના ઇંગ્લિશમાં અર્થ છે, ઇંગ્લિશ શબ્દો છે, ગુજરાતી શબ્દો છે, એટલા માટે ડિક્શનરી. અને ત્યારે વિવેકાનંદજી બોલ્યા હતા કે આમાં 2 શબ્દ છે ને એના અર્થ નથી, આમાં 2 શબ્દ છે એના અર્થ નથી. તો કે કયા 2 શબ્દ? તો કે ભલા માણા, એક સતી અને બીજો જતી. એ તમારી ત્યાં પાક્યા નથી, તમને ખબર ન પડે કે સતી ને જતી કોને કહેવાય. એ અમારો હનમો જતી, એ ભલા માણા તમારે ત્યાં ન હોય. અને ભલા માણા આ તો એ ધરતી છે કે મરવા માટે પણ હિન્દુસ્તાન પસંદ કરવું પડે. અહીંયા ગંગાની અંદર આવવું પડે. એકડ કટકો હાડરો જોતટ ગંગા જાય, 71 પેઢીમાં કોઈ દી ભૂત ન હરજે ભાગીરથી. અહીંયા કાશીની અંદર લોકો ભણવા આવે અને ગંગાની અંદર એમ કહેવાય કે જ્યારે અહીંયા હરદ્વારની અંદર આવતા હોય ને અને કદાચ એમ કહેતા હોય, જે લઈને જતા હોય એમ કહેતા હોય કદાચ તમારા ફાધરનું અવસાન થઈ જાય તો કે ભલા માણા હરદ્વારની અંદર અવસાન થાય આવી પવિત્ર ભૂમિ બીજી કઈ હોય? તો ભલા માણા એ આપણી ભારત ભૂમિ છે. અહીંયા મરવાનું મન થાય, અહીંયા જન્મવાનું મન થાય, અહીંની જનેતાના એમ કહેવાય ધાવવાનું મન થાય. અહીંયા છત્રપતિ શિવાજી પાકે, અહીંયા મહારાણો પ્રતાપ પાકે, અહીંયા ઝાંસીની રાણી પાકે. ભલા માણા એ મારું ભારત છે, એ મારું ગુજરાત છે. ભલા માણા આજ ખરેખર ધન્યવાદ છે. અને આગળ ઉપરનો કાર્યક્રમ ડૉક્ટર ભારદ્વાજજી, જેમણે હિન્દી ઉપર PhD કરેલું છે, ભારદ્વાજજી સાહેબને આપણે વિનંતી કરીએ. હરિ ઓમ સહસ્ર શિરેખા પુરુષ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાત પુરુષ એવેદગ્ગો સર્વં જદભૂ તંજશ્ચ ભાવ્યમ एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादो पादूर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः ततो ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः जगनेन जगन्मय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्न तेहना माहौल में, इसी पवित्र माहौल में मैं चाहूँगा कि माननीय सुरेंद्र भाई राजपूत, राज्यपाल श्री एवं उपस्थित महानुभावों को मंच पर दीप प्रागट्य के लिए लेकर के आए. माननीय सुरेंद्र भाई राजपूत, गवर्नर श्री एवं अन्य सभी महानुभावों को दीप प्रागट्य के लिए मंच पर लाएं. भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्जत्राः शतमिन्नु
शरदो अन्ति देवा जतरा निश्चकरा जरसन तनूनां आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तेः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुवा ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। शुक्रिया। आप सभी सज्जनों एवं सन्नारियों का गुजरात राज्य सेवा समिति तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और इस कार्यक्रम के लिए जो मांझी बनकर हमारे सामने आया है, निखरा है, ऐसे सुरेंद्र भाई राजपूत जी के लिए एक छोटी सी रचना मैं जरूर से कहना चाहूंगा। मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ हैं इस पार तो बहुत कोई उस पार हैं। ऐसे मांझी स्वरूप माननीय सुरेंद्र भाई राजपूत जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे पोडियम पर आएं और प्रासंगिक स्वागत परिचय करें। माननीय सुरेंद्र भाई राजपूत जी। मंच पर आसीन हम सब के महामहिम ज्ञानी, ज्ञान के ऊपर जिनकी अपनी इतनी वशिष्ठ भूमिका है, ऐसे हमारी सभा के आज के अध्यक्ष गवर्नर श्री पी जी कोहली साहब का मैं आप सब लोगों की तरफ से मैं गया, मैंने उन्हें बताया कि हम ये काम करते हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से 3 पीढ़ियों को सुना, हम जैसे लोगों को भी सुना, नौजवानों को भी सुना, महिलाओं को भी सुना, और सुनते के साथ ही कागज़ पर न मालूम कौन सा दस्तखत किया, वो दस्तखत वहाँ किया। आज हमारे बीच में हाजिर हैं, हमने तालियों से उनका स्वागत। ऐसे महामहिम हमको आज मिले हैं। आदरणीय रूपाला जी भारतीय जनता पार्टी के उप प्रमुख साहब हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, न मालूम क्या क्या हैं। उनकी कोठा सूझ और अपना विवेक और कार्यकर्ताओं के साथ में जुझारू तरह के रहने की जो क्षमता, अपने आप के अंदर एक फिलॉसफी है, अपने आप के अंदर एक मार्गदर्शन है। मैंने उनसे कहा कि रूपाला साहब, आप हमारा ये छोटा सा आमंत्रण है, क्या सुरेंद्र भाई कोई आवे कि ना आवे? हूं आवेश, हूं आवेश। ये बात करने का अंदाज, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का अंदाज,
कार्यकर्ताओं को जान देने का अंदाज जिस भाषा के अंदर उन्होंने अपनी मर्दानगी बताई है, मैं भी गुजरात राज्य सेवा समिति की तरफ से कहता हूं कि अगर एक बार इशारा करके देखना हम क्या करते हैं, वो भूमिका हम भी आपको बताएं। भाई दिलीप संघाणी मेरे मित्र हैं, मेरे मित्रवर हैं, हम साथ में धारासभ्य रहे। अनन्य व्यक्तित्व है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हर हाल में खुश, और इतना अंदर से जो प्यार उनके चेहरे के ऊपर दिखाई देता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पर किसी ने कहा है कि जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही तो दिलीप जी को पहचानने वाले होंगे, वही दिलीप। हमारे होम मिनिस्टर साहब, मैंने उनसे कहा, रजनी भाई તમે દરેક જગ્યાએ જાઓ છો, પણ અમારી અમદાવાદની નગરીમાં કેમ નથી આવતા? મને કહે એવું નથી। दो शब्द मैंने प्यार के कहे कि आपको आना है। उन्होंने वहां से मुझे फोन किया कारोबारी में से, सुरेंद्र भाई हूँ आईश, तो मैं कीधुं आपना माटे गौरवનું स्थान, सम्मानનું स्थान અમારા કિરીટભાઈએ અને અતુલભાઈઓ ખોલીને રાખ્યું છે। आप पधारो। आ अमारी बीजू कई नहीं, थोड़ी विवेकनी भाषा है, सामान्य અને गरीब लोगों अंदर पड़ता। आ लोग निरखवा मांगे थे कि हमारो होम मिनिस्टर कौन है। रजनी भाई एटला मायाळू प्रकृतिना, एटला उदार हृदयना व्यक्तित्व है, युवान है, करवानी बहु क्षमता है, जो लोग करवा दे तो। आवा होम मिनिस्टर साहेब पण अमारा वच्चे छे। सम्माननीय मेयर साहेब, जो भूली जाओ तमे एक्टर वेक्टर बधाने भूली जाओ, एमनी लाक्षणिकता, एमने कार्य करवानी शैली, एमनी पद्धति नगर जाण। इच्छा थई जाए राते 12 वागे तो गाड़ी लईने निकली पड़े। इच्छा थई जाए कि मारे समझवू है कि क्या एरिया में शू चाली रह्यु छे। आवाज अने साध क्यांथी आवे तो आवाज अने साधना साथे मारा मेयर, आपड़ा बधाना मेयर आज आपड़ा वच्चे छे। आवड़ाना चेयरमेन श्री पटेल साहेब आपड़ा वच्चे आया छे। पहला ये स्टेन्डिंग कमिटीना चेयरमेन हता, आज आवड़ाना चेयरमेन छे। कहीं भी काम बोलो, चींदो कहीं काम, योजनाबद्ध तर्क साथे, इकोनॉमिकल आंकड़ा साथे, आर्थिक आंकड़ाओं साथे वाड़ अनुभव में गया है। पटेल साहब ना अनुभव में आवा व्यक्तित्व। अरे भाई सुरेश भाई नी बात सायोना में मैं तमने करी, ए पण आजे एक पेपर साथे, पेपरना चीफ तरीके संकળાયા છે। होनहार युवान है, कार्यदक्षता ने कार्यक्षमता एमना हृदयनी अंदर पड़ेली है અને खूब हिम्मतथी काम करी रह्या छे। तमाम मारा अनुजों, तमाम मारा मुरब्बीओं, तमाम मारा साथियों, मैं हृदय से और आपकी तरफ से अनुकंपा से उनका स्वागत करता हूँ। इतना जोर से ताली बजाओ। भारत माता की। ये कोहली साहब सामान्य जरूर हैं, कितने आदिवासी एरियो से आए हैं, नवसारी, वलसाड, विविध क्षेत्रों से, गुजरात के अनेक क्षेत्रों से आए। 30 बरस तक जो हमने काम किया, उस क्रांति की झलक आपके सामने हमने चित्र के रूप में पेश की। मुझे नाज है, मुझे फक्र है कि मोर पीछा थी रणियामणो होय छे,
मेरी जो सेना है, जो मेरी ताकत है, वो मेरे कार्यकर हैं। देखिए गुलाबी गुलाबी गुलाबी, देखिए देखिए, ये सामान्य जरूर है पर असामान्य है। हमारा काम सरकार के बीच में और प्रजा के बीच में, हमारा एनजीओ का काम सेतु बनने का काम है, और वो सेतु बनने का काम हम लोग आपके बीच में करें। साहब, हमने व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, कितनी भी भ्रमणाएं, रूपाला साहब, कितनी भ्रमणाएं हमारे लिए लोगों ने व्यतीत की है, क्योंकि कामदार घर में से जन्म हुआ है, तो लड़ते 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 लोगों को भ्रम सा हो जाता है कि ये है क्या। मैं ये स्टेज से कसम खाता हूं कि मैंने आज तक चाय नहीं पी, कॉफी नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, दारू नहीं पिया, कुछ नहीं पिया, और मेरे परिवार के अंदर भी वही चीज चल रही है। व्यसन मुक्ति का अभियान संपूर्ण तरह से चल रहा है। सेवा समिति ने उसका अपना अनुरूप बनाया है। मैं चाहता हूं कि जो योगा के अंदर भारत, किसके अंदर, जरा जोर से बोलो, किसमें? योगा में। किसमें? जोर से बोलो, किसमें? योगा में। योगा में 171 कंट्रियों ने सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी को ये कह के दिया, अकेला भारत नहीं पर विश्व इसके ऊपर कुर्बान है, विश्व इस बात को लेके चल रहा है। हमारी ग्रीन बुक के अंदर यह लिखा गया कि भारत की संस्कृति का पहला परिचय उसका योगा है। जीरो बैलेंस पर हमने अकाउंट खुलवाए साहब, करोड़ों की तादाद में जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुले। गिनीज बुक में लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो जीरो बैलेंस गरीबों के लिए अकाउंट खुलवाने की जो बात की है, न भूत थे, न भविष्य थे, न था न होगा। आज करोड़ों लोग, गरीब लोग अपना अकाउंट खुलवाने के लिए ये गिनीज बुक में लिखा गया। पार्टी ने और भी सभ्य बनाने की कोशिश की। दुनिया में सब पार्टी चलती हैं, एक पार्टी की विशेषता देखो कि स्टार्ट किया और सारी दुनिया के ऊपर छा गए। सबसे ज्यादा अगर किसी ने सभ्य बनाए हो तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और दुनिया ने उसे नवाजा, वो भी गिनीज बुक में लिखा हुआ है। ये सिद्धियां नहीं तो और क्या है, पर इनको प्रजा तक कौन ले जाए, प्रजा के बीच में कौन ले जाए, प्रजा से इसका जिक्र कौन करे, प्रजा से कोशिशें कौन करवाए। कल ही प्राइम मिनिस्टर में कारोबारी में बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, नरेंद्र जी ने कहा, इनके यहाँ के सपूत हैं। उन्होंने बताया और सभी को कहा, अनुरोध किया, मैंने योजना दी है, उसका अमलीकरण प्रजा के बीच में जाके करने का हमारा कार्यकरों का है। पर आम कार्यकरों से मैं कहना चाहता हूं कि वो भी जुटे और इस कार्यकारिणी का लाभ लें, इस कार्यक्रम का लाभ लें। अनुरोध है उनका। तो इन तमाम चीजों को लेकर गागर में सागर भरना चाहता हूं, समय आपका ज्यादा नहीं लेना चाहता, और आपको बताता हूं, भरी सभा के बीच में हम बहुत निष्ठा से काम करते आए। कुदरत ने हमारी रखेवाल की है, भगवान ने हमारी, कुदरत ने, और जो बैठा है कोई शक्ति को चलाने वाला, उसने हमारी निगहबानी की है, बचाकर हमें आप तक भेजा है। अब आपको संभालना है। अब तू दे दे जहर या दे दे दवा, तेरी महफिल में हम दिल जले आए। क्या क्या तरह से नवाजते हैं। पायल के गणों का इल्म नहीं, झंकार की बातें करते हैं कुछ लोग। समस्ती में उतरना नहीं चाहता, नहीं तो सुबह हो जाएगी।
लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि जमाना बदल जाया करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जमाना बदल जाया करता है, अक्सर मर्द वो होते हैं जमाने को बदल देते हैं। और बदल के बताया सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने, एक चाय की किटली से खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर का तख्त पलट के तख्त ले लिया और बता दिया कि क्या कर सकता है। छोटे से व्यक्तित्व के अंदर, छोटे से अंदर का जो खमीर जो भारतीयों का होता है, सारे विश्व के दौरे के बाद आज एक एक चिंतन को लाकर भारत के समक्ष कार्यकारिणी के रूप के अंदर डॉक्टर पेश करते हैं। ये व्यक्ति ऊपर से बात करके नीचे वालों को देते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। इस कार्यवाही को यहां से जाने के बाद भी हमारे सभी कार्यकर्ता इन योजनाओं का प्रचार करें, प्रसार करें। अगर किसी को लग गई ना, अगर किसी के काम में आ गई ना, तो ये सीधी बात हमारी पार्टी तक पहुंचेगी। मैं आपसे अनुरोध दिल से करता हूं कि इसके अंदर उतरो, इसके अंदर गहराई में उतरो, इसको समझने का प्रयत्न करो। समय टल जाता है, समय फिर नहीं आता। समय के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करो मेरे साथियों। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। किस किस का नाम लूं और किस किस को छोड़ूं, एक एक से बढ़कर यहाँ पर बैठे हुए साथी हैं। मैं सबका, जिन लोगों ने इसमें पार्टी लिया, भाग लिया, ऐसे कैसे कर्मठ लोग हैं हमारे अशोक भाई, कैसे कैसे कर्मठ लोग। इन्होंने आरएसएस के अंदर अपनी सेवाएं वर्षों तक दी, बैठे रहते हैं साधु संत बनकर और अपना कार्यवाही करते रहते हैं। हमें जरूर पड़ती है तो इन्हें बुला के धीरे से पूछ लेते हैं कि भाई हमें बताओ पार्टी में कैसे रहना। उनसे भेंट लेते हैं, ये सौगात लेते हैं। और ऐसे अखूट जो कार्यकर हैं, जो चाहते हैं सेवा समिति को कुछ देना, मैं उन्हें वेलकम करता हूं। आओ और किसी भी तरह का आप अपना विचार जो अंदर बना है सामान्य लोगों के लिए दो। ये दरवाजे खुले हैं, ये गागर खुली है, ये सागर खुला है। आइए आप। मैं फिर से एक बार आप तमाम सम्माननीय नेताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं। जो आज समाज और व्यवस्था के अंदर आपने जो सम्मान बढ़ाया है, शब्द नहीं मेरे पास। फिर से आपसे करबद्ध निवेदन करके आपको अनुग्रहित हो। भारत माता की। नहीं 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 नहीं, महाराज आ गए, जरा देख कर बोलो। एक बार जरा जोर से बोलो, नरेंद्र भाई को खबर पड़े कि इंडिया चल रहा है। ये जो देखा आपने, लड़कों को देखा करते हुए, ये इंडिया कहाँ, कौन कैसे रोक सकेगा। पर सौनों साथ सबको जुड़ना पड़ेगा। भारत माता की वंदे। खूब खूब आपका धन्यवाद। जाने अनजाने मैं किसी का नाम भी ना लेकर सका हूं, तो इसे कर्ज समझना, कभी अदा कर दूंगा। कभी भी आपको इस सेवा का मौका देने की जब भी आपकी इच्छा हो, आप आइए। मेरे प्रोफेसर लोग, मेरे साथी लोग, मेरे तमाम बैठे हुए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, तमाम लोग ने जो मुझे मदद की है, और प्रोफेसर साहब नॉलेज एकेडमी के अंदर पढ़ाकर जो आईएएस और आईपीएस तैयार करते हैं, वो भी वृंद यहाँ पर खड़ा हुआ है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। तमाम साथियों का जिन्होंने जाने अनजाने इसमें प्रयत्न की है, मैं सबका तहे दिल से आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में जो चारों सूत्र हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के विकास के लिए दिए हैं, ये रचना
उसी पर आधारित है। अब हमारे बीच माननीय राज्यपाल श्री का स्वागत स्मृति चिन्ह, शॉल एवं हार के द्वारा माननीय सुरेंद्र भाई राजपूत करेंगे। मैं सुरेंद्र भाई राजपूत से निवेदन करता हूं कि अपने कर कमलों से माननीय राज्यपाल श्री ओपी कोहली जी का स्वागत करें। माननीय सुरेंद्र भाई राजपूत कोहली जी के लिए। तालियां कुछ कम लग रही हैं, और जोर से बजाइए। मित्रों, गांधी जी के विचारधारा से ही प्रभावित और उसी विचारधारा में प्रवाहित ऐसे माननीय राज्यपाल श्री का स्वागत गांधी जी की ही स्मृति द्वारा किया जा रहा है। ये वास्तव में बहुत ही अच्छा संयोग है। परम आदरणीय भाजपा के उपाध्यक्ष एवं तेजस्वी वक्ता माननीय परसोत्तम रूपाला जी का स्वागत करने के लिए स्वप्निल भाई राजपूत से मैं निवेदन करूंगा कि वे आएं और शॉल पुष्पगुच्छ के द्वारा उन्हें सम्मानित करें। रूपाला जी के लिए चंद लाइनें, साहित्य के भी आदमी हैं, भावना जरूर से समझेंगे। काश तू चांद होता, काश तू चांद होता और हम सितारे होते। काश तू चांद होता और हम सितारे होते। आकाश में हमारा भी एक आशियाना होता। आकाश में हमारा भी एक आशियाना होता। लोग तुम्हें दूर से देखते, नजदीक से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। ऐसे बहुत ही सरल लेकिन तेजाबी वक्ता माननीय रूपाला जी को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। अब दिल से और बाहर से खूबसूरत माननीय चेयरमैन श्री नेफ्स्कोप के परम आदरणीय दिलीप भाई संघाणी के लिए कुछ चंद लाइनें मैं कहूँगा। इसके बाद हम उनका भी स्वागत करेंगे। आपके स्वागत के लिए तो सर बस इतना सा मैं कहूँगा, हवा को कह दो कि खुद को आजमा कर दिखाए। हवा को कह दो खुद को आजमा कर दिखाए। बहुत चिरागों को बुझाती है, एक तो जला कर दिखाए। और ऐसे एक नहीं, अनेक चिराग जिसने जलाए हैं, ऐसे परम आदरणीय दिलीप भाई संघाणी का स्वागत बबली भाई करेंगे। तालियां कुछ कम लग रही हैं, ये बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। आपकी तालियों की गूंज ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये झरना तो निरंतर बहता रहना चाहिए। अब परम आदरणीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री माननीय रजनीकांत भाई पटेल का पुष्पगुच्छ, शॉल एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा स्वागत किरीट भाई व्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रचना
उनके भी श्री चरणों में मैं रखना चाहूँगा। रजनी भाई, अगर सिर्फ जरूरत के समय कोई आपको याद करे तो आप उसका बुरा न माने। अगर कोई जरूरत के समय आपको याद करे तो आप उसका बुरा न माने, क्योंकि आप उसके लिए अंधेरे में रोशनी की वो अंतिम किरण है जो उसके काम आती है। अतः ऐसे रोशनी के किरण स्वरूप माननीय रजनीकांत भाई का स्वागत किरीट भाई व्यास करेंगे। किरीट भाई व्यास। मेयर श्री अहमदाबाद के परम आदरणीय गौतम भाई शाह का स्वागत पुष्पगुच्छ, शॉल एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा देवेंद्र भाई करेंगे। देवेंद्र भाई माननीय गौतम भाई शाह का स्वागत करेंगे। गौतम भाई शाह को हम कैसे भूल सकते हैं। कुछ चंद लाइनें आपके लिए भी हो जाएं, क्योंकि शेरो शायरी के आप बहुत शौकीन हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। चुनौतियों की चक्की ने बहुत महीन पीसा है। चुनौतियों की चक्की ने बहुत महीन पीसा है। शुक्र है संतुष्टि की बूंदों ने अभी तक खाक में मिलने नहीं दिया। तो ऐसे चैलेंजिंग व्यक्ति जो अहमदाबाद को मेयर के रूप में मिले, ये हमारा वास्तव में भाग्य है। हम उनके ऋणी हैं। अब चेयरमैन श्री भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत मीनाक्षी दवे करेंगी। भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत ऑडा चेयरमैन प्रोफेसर मीनाक्षी दवे। मित्रों, जो पतझड़ का सामना करता है वही वसंत का आनंद ले पाता है। तो जिसने तमाम प्रकार की पतझड़ों को झेला हो वही ऑडा का चेयरमैन बन पाता है। अब बारी आती है यो ना, जिसका फुल फॉर्म बहुत अच्छे से जिन्होंने अपने कंठ के द्वारा हमें समझाया, ऐसे परम आदरणीय परम स्वामीनारायण भक्त माननीय सुरेश भाई पटेल, जो मेरे मित्र भी हैं और आज के हमारे बहुत ही कीमती अतिथि भी हैं, माननीय सुरेश भाई पटेल का स्वागत छगन भाई करेंगे। सुरेश भाई ने अलग अलग एरिया में बहुत से घर बनाए हैं, बहुत से मकान बनाए हैं। घर बनाकर हमारे दिल में वो चला गया। घर बनाकर हमारे दिलों में वो चला गया, न तो खुद बसता है न किसी को रहने देता है। ऐसे परम आदरणीय सुरेश भाई पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों का ज़्यादा समय न लेकर के एक साथ उपस्थित मंचस्थ महानुभावों का मैं स्वागत करना चाहूँगा बड़े हार के द्वारा। बड़े हार के द्वारा हमारे राज्यपाल श्री की दाईं ओर बैठे हुए
मंचस्थ महानुभावों का स्वागत प्रोफेसर नाई, प्रोफेसर पीयूष भाई सोलंकी, प्रोफेसर अशोक पटेल, प्रोफेसर मीनाक्षी दवे, प्रोफेसर दिलीप गढ़वी और प्रोफेसर सुरेश पटेल करेंगे। इन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि वे मंच पर आएं। माननीय राज्यपाल श्री के बाईं ओर उपस्थित सज्जनों का स्वागत श्री किरीट भाई व्यास, डॉक्टर अतुल शाह, श्री संदीप सिंह, श्री देवेंद्र सिंह, श्री भावेश भाई दवे, श्री बबली भाई और शिवभद्र सिंह चुड़ासमा करेंगे। ऐसा माहौल बहुत गरिमामय होता है कि जब एक साथ हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हों, और ये संयोग सुरेंद्र भाई के परिवार में बारंबार देखने को मिलता है और आज के इस कार्यक्रम में भी हम देख पा रहे हैं। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर नजारा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब मित्रों, जिसका आपको और विद्यार्थियों को बहुत अब राज्यपाल श्री का हार भी उनके गले में आने के लिए लालायित है, तो सभी प्रोफेसर मित्रों से और सुरेंद्र भाई से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी उन पुष्पों की अभिलाषा पूरी करें। सभी प्रोफेसर मित्र राज्यपाल श्री के लिए। दक्षिण गुजरात से आए हुए हमारे उप प्रमुख गुजरात राज्य सेवा समिति के खुद की आदिवासी आगवी स्टाइल से माननीय श्री राज्यपाल श्री का स्वागत करेंगे और गुजरात राज्य सेवा समिति के प्रमुख श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब विद्यार्थी मित्रों का ज़्यादा समय न लेते हुए तेजस्वी एनआर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी के विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि वे समय ज़्यादा न लेते हुए कृपया मंच पर आएं और माननीय राज्यपाल श्री से मैं निवेदन करूँगा कि वे अपने ही बच्चों यानी कि सरस्वती पुत्रों का स्वागत अपने कर कमलों से उन्हें स्मृति चिन्ह दे करके करें। खुशबू सोनी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मानसी ब्रह्मभट्ट, मानसी ब्रह्मभट्ट, माली नीलेश, परम आदरणीय प्रिंसिपल सरवैया जी का स्वागत माननीय राज्यपाल श्री करेंगे। माननीय रमेश भाई चौधरी, डॉक्टर जी के पांडा कृपया मंच पर आएं। सरवैया जी के कारण आज जो कुछ भी प्रोफेसर्स की दुनिया में समरस वातावरण दिखाई दे रहा है उसके जिम्मेदार सरवैया साहब हैं। डॉक्टर जी के पांडा
जिन्होंने 1 लाख लोगों को संस्कृत सिखाने का संकल्प लिया है, 65,000 को सिखा चुके, बाकी के लिए उन्होंने विदेशों में भी यात्रा करनी शुरू की है। माननीय जी के पंडा जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हरेश भाई पांड्या, मिस्टर हरेश भाई पांड्या एवं दिलीप भाई भट्ट स्पर्धात्मक एग्जाम में तालीम देने के लिए दोनों की प्रतिभा को हम नवाजते हैं। माननीय भीखचंद जायसवाल जी जो केला देवी मंदिर के संचालक हैं, एम फरसू भाई कक्कड़ वे भी मंच पर आए। भीखचंद जी जायसवाल, परसू भाई कक्कड़ और प्रफुल्ल भाई हिंगो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा समय न लेकर के हम स्मारिका के विमोचन के लिए परम आदरणीय राज्यपाल श्री से निवेदन करेंगे कि वे स्मारिका का विमोचन करें। इससे पहले नादुरुस्त तबीयत होने के बावजूद भी आप श्री मंच पर आए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्मारिका का विमोचन राज्यपाल श्री कोहली जी करेंगे। માન્ય શ્રી રાજ્યપાલ શ્રી કોહલી સાહેબને આપણે વિનંતી કરીએ એ આશીર્વચન આપે। જોરદાર તાળીઓ, ભાઈ તાળીઓ હોવી જોઈએ। मंच पर विराजमान सामाजिक क्षेत्र के अनेक अनुभवी महानुभावगण, मान्यवर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, मान्यवर श्री गौतम भाई शाह जी, श्री दिलीप संघानी जी, मान्यवर श्री सुरेश भाई पटेल जी, श्री रजनीकांत पटेल जी, और जिस संस्था का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस संस्था के प्रमुख और पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र भाई राजपूत जी और इस सभागार में उपस्थित आप सब भाइयों और बहनों। कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है और समय पर समाप्त होना अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं गुजरात राज्य सेवा समिति को एक अच्छा सम्मेलन आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। यह इस संस्था का 30वां वार्षिकोत्सव है। इसके 3 दशक पूरे हुए हैं और इन 3 दशकों में इस संस्था ने अपनी छाप समाज पर छोड़ी है, अपना स्थान बनाया है, उसका अपना एक व्यक्तित्व, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी बनी है। जब इस संस्था के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता मुझे मिलने के लिए आए तो मैंने इस संस्था की गतिविधियों के संबंध में उनसे जानकारी ली थी। पहले तो मुझे कुछ ऐसा भ्रम हुआ कि शायद यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, क्योंकि इस संस्था के केंद्र बिंदु श्री सुरेंद्र भाई राजपूत पूर्व विधायक रहे हैं।
तो राज्यपाल को राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए, ऐसा सोचकर मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए थोड़ी हिचक हो रही थी। लेकिन बाद में पता चला कि वह पूर्व विधायक तो हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया है और यह संस्था भी अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य करती है। इसलिए मुझे इस कार्यक्रम में आने में कोई हिचक नहीं रही और मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। यहाँ इस संस्था के कार्यों की, कार्यकलापों की, गतिविधियों की जो कुछ झांकी देखने को मिली, जो कुछ यहाँ पर बयान किया गया, उससे ये पता चलता है कि गुजरात राज्य सेवा समिति बहुआयामी, अनेक आयामी, मल्टी डायमेंशनल सोशल एक्टिविटीज़ करती है। वास्तव में राजनीतिक कामों से भी ज़्यादा महत्व का काम सामाजिक काम होता है। राजनीतिक कामों की चर्चा ज़्यादा होती है, प्रचार ज़्यादा होता है, प्रसिद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन ठोस काम तो सामाजिक काम होता है। और सामाजिक काम करने का आनंद क्या होता है, यह सामाजिक काम करने वालों को ही पता होता है। श्री सुरेंद्र भाई राजपूत और उनके साथ सभी साथी, उनकी पूरी टीम बहुत रस लेकर सामाजिक कामों में लगी हुई है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुजरात में सामाजिक काम करने की एक बड़ी परंपरा रही है। ऐसी परंपरा देश के और राज्यों में कुछ कम देखी जाती है। गुजरात अपनी फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट के लिए, अपनी समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग सरकार का मुंह नहीं जोहते, बल्कि अपने प्रयास से समाज के लिए कल्याणकारी कामों में जुट जाते हैं, लग जाते हैं, अपना ट्रस्ट बनाते हैं, अपनी संस्था बनाते हैं और जो भी सामाजिक काम उन्हें उचित लगता है उस काम में लगते हैं। ऐसी यहाँ की बहुत अच्छी, स्वस्थ, हेल्दी परंपरा है। इसके लिए गुजरात राज्य को भी बधाई देने की ज़रूरत है। बिना भावना के और अनुभूति के सामाजिक काम होते नहीं। सामाजिक काम के लिए मनुष्य का संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, भावनाशील होना बहुत ज़रूरी है, मन में दर्द होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये भावना मन में नहीं होती तब तक व्यक्ति सच्चा सामाजिक काम नहीं कर सकता। हमारे देश में तो सामाजिक काम की ज़रूरत इसलिए भी बहुत है कि हमारे देश की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अनेक प्रकार के अभावों से ग्रस्त है। ऐसे अभावग्रस्त समाज के अभावों को दूर करने का काम अकेले राज्य नाम की संस्था नहीं कर सकती। इसलिए राज्य नाम की संस्था के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनका अपना स्थान है, उसका महत्व है। उसके साथ मिलकर सामाजिक संस्थाओं को भी अभावग्रस्त लोगों के जीवन में जो अभाव है, कमी है, उसको दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि श्री सुरेंद्र भाई राजपूत और उनकी टीम इस प्रकार के कार्यों में लगी हुई है। भारत को हम धर्म प्रधान देश कहते हैं। धर्म यहाँ का स्वभाव है। साधारण व्यक्ति, अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, वो भी धार्मिक स्वभाव का होता है, धार्मिक प्रकृति का होता है, जिसे हम कहते हैं कि धर्म यहाँ के व्यक्ति के रक्त में है, उसकी प्रकृति में है, उसके स्वभाव में है। लेकिन ये धर्म है क्या? धर्म का एक तो बहुत तात्विक, दार्शनिक, फिलॉसफिकल स्वरूप है, उसको हम छोड़ दें, आम आदमी की भाषा में बात करें तो धर्म का अर्थ है सेवा। इसलिए सेवा को धर्म कहा गया है। सेवा धर्म है, धर्म सेवा है। तो धर्म का सबसे
सरल, समझ में आने वाला, पकड़ में आने वाला स्वरूप अगर कोई है तो वो सेवा है। और सेवा का अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने से बाहर निकले, अपने में केंद्रित रहेगा, अपना विचार करेगा, अपने बारे में सोचेगा और इस प्रकार सेल्फ सेंट्रिक होकर रहेगा तो वह सेवा नहीं कर सकता। सेवा के लिए अपने से बाहर निकलना जरूरी है। और सेवा के लिए मन में संवेदना, दर्द, सहानुभूति, सिंपैथी होना जरूरी है। गुजरात वैष्णव संतों की भूमि भी है और श्री नरसिंह मेहता ने वैष्णव भक्त की बड़ी अच्छी परिभाषा की है। जो पर पीड़ा को जानता है वही सच्चा वैष्णव है। वैष्णव जनते तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे। यह पर पीड़ा का अनुभव, इसी में से सेवा भावना पैदा होती है। और तुलसीदास ने भी धर्म की यही परिभाषा की है। तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। यानी परहित धर्म और पर पीड़ा अधर्म। इतनी सीधी सरल धर्म की परिभाषा हमारे यहाँ महात्माओं ने, संत पुरुषों ने, भक्तों ने, वैष्णवों ने की है। और इसलिए धर्म को इतना सरल कार्य बना दिया है कि हर व्यक्ति चाहे तो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, निरक्षर हो, वो भी धार्मिक हो सकता है अगर वो सेवा के कार्य में लग जाए तो। धर्म का ये इतना सरल, आसान स्वरूप सेवा के रूप में हमारे यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गुजरात राज्य सेवा समिति बहुत से काम करती है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। उसका युवा विंग भी है, उसका महिला विंग भी है। लेकिन ये कार्य करने के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण काम ये संस्था करती है, और वह है कि यह सरकारी योजनाओं को उन तक ले जाती है जिनके लिए वो योजनाएं बनी हैं। सरकारें बहुत अच्छी अच्छी जनहित की योजनाएं बनाती हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन बहुत बार वे योजनाएं जिनके लिए हैं उन तक पहुंच नहीं पाती। एक अंतराल और एक गैप बना रहता है। इसलिए आवश्यकता है इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं की, जो सरकार की नीतियों को और सरकार की योजनाओं को उन तक ले जाएं जिनके लिए वे नीतियां और वे योजनाएं बनी हैं। हम देखते हैं जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं, तो उनके मन में जल्दी से जल्दी इस राष्ट्र का, इस देश का स्वरूप बदलने की प्रबल इच्छा है। और इसलिए वे एक के बाद एक ऐसी योजनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस देश का स्वरूप बदलेंगी, और हम जो एक परिवर्तन की इच्छा लेकर मन में चलते हैं वह इच्छा पूरी होगी। हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत से ऐसे सूत्र जनता के सामने रखे हैं। मिसाल के तौर पर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटी योजना, अनेक प्रकार की बीमा योजनाएं और किसानों के लिए फसल बीमा योजना। तेजी से देश का विकास हो और यह देश एक डेवलपिंग कंट्री की स्टेज से निकलकर डेवलप्ड कंट्री की स्टेज में आ जाए, इसके लिए बहुत सी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखी हैं। लेकिन ये योजनाएं क्या हैं? इन योजनाओं का खुलासा करने की ज़रूरत है।
यह योजनाएं बहुत सरल भाषा में आम आदमी को समझाने की ज़रूरत है और आम आदमी को इस बात के लिए मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो इन योजनाओं को समझकर इनका लाभ उठाए। ये काम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से भी कहीं ज़्यादा कारगर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से ये काम सामाजिक संस्थाएं कर सकती हैं। बहुत सरल भाषा में इन योजनाओं को लिखकर छोटे छोटे पैम्फलेट, छोटे छोटे ड्राफ्ट के रूप में जनता के बीच में पहुंचाना, उनकी बैठकें करना, उनको समझाना। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना की घोषणा की थी तो उसके कुछ दिन बाद मुझे एक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में जाने का मौका मिला। कन्वोकेशन में मैंने इस फसल बीमा योजना का जिक्र किया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से मेरी बात हुई। उन्होंने उस योजना को पढ़ा भी नहीं था। अखबार में उस योजना का बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट, प्रकाशन, योजना क्या है, योजना के क्या क्या पहलू हैं, योजना के क्या लाभ हैं, ये सब बातें बताई गई थी। लेकिन हम बहुत सी अच्छी अच्छी बातों को भी केवल मोटे मोटे रूप में सुनकर छोड़ देते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाते, इसलिए हमको पता नहीं होता। ऐसे ही प्रधानमंत्री जनधन योजना वगैरह बहुत सी योजनाएं हैं, वो जिनके लिए हैं, गरीब लोगों के लिए, उनको ठीक तरीके से वे योजनाएं उनकी भाषा में समझाना ये बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जितना महत्व राजनीतिक दलों का है उतना ही महत्व सामाजिक संस्थाओं का भी है। सामाजिक संस्थाएं जनता के बीच में और राज्य के बीच में एक सेतु का, पुल का काम कर सकती हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि इसी प्रकार का पुल का काम यह संस्था, जिसके प्रमुख सुरेंद्र भाई राजपूत हैं, वह संस्था कर रही है। अब स्वच्छता अभियान की बात है। स्वच्छता अभियान एक मास मूवमेंट बन जाए, एक पब्लिक मूवमेंट बन जाए, इसमें सामाजिक संस्थाओं का बहुत योगदान हो सकता है। हमारे समाज में करने के लिए ढेरों चीज़ें हैं। जिधर नज़र दौड़ाओ कुछ ना कुछ रचनात्मक काम करने की गुंजाइश और स्कोप है। इसके लिए इनिशिएटिव चाहिए। ऐसा इनिशिएटिव इस संस्था ने करके दिखाया है, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। व्यसन मुक्ति की बात की है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसकी बात है, स्वच्छता अभियान की बात है। ये बहुत से काम ऐसे हैं जिनको एक मास मूवमेंट, एक पब्लिक मूवमेंट बनने की ज़रूरत है। सरकारें अच्छी मंशा से, अच्छी नीयत से, विद गुड इंटेंशन जनहित की अच्छी योजनाएं घोषित करती हैं, लेकिन वो वहाँ से दिल्ली से चलकर नीचे झोंपड़ी तक पहुँच पाए, इसमें एक लंबा रास्ता होता है। इस लंबे रास्ते में ज़रूरत पड़ती है सामाजिक संस्थाओं की और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर ऐसे उत्साही लोग हैं गुजरात में, सुरेंद्र भाई राजपूत जैसे, उनके टीम, उनके साथी जो इस काम को करने में लगे हुए हैं। हम जानते हैं कि राजा भगीरथ वह गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। गंगा तो थी लेकिन वो स्वर्ग की स्वर्ग में ही रह जाती, शायद धरती पर ना उतरती अगर राजा भगीरथ ना होते तो। इसलिए अच्छी अच्छी सरकारी नीतियों, जनहितकारी नीतियों को भी धरती पर लाने के लिए बहुत से भगीरथों की ज़रूरत है और ये भगीरथ सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं करता। मैंने जो कुछ सुरेंद्र भाई राजपूत की संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की और यहाँ जो कुछ सुनने को मिला, उस सब में से मुझे इस बात को लेकर बड़ा उत्साह है कि यह संस्था सरकार की जनहितकारी नीतियों को जनता तक पहुँचाने का
एक प्रभावशाली माध्यम मीडियम बनी हुई है। मैं एक बार इनको और इनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मननीय और प्रेरक वचन के लिए माननीय राज्यपाल श्री के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मित्रों, अब कार्यक्रम के समापन के लिए हम राष्ट्रीय गान करेंगे और उसके बाद ही हम कार्यक्रम को संपूर्ण हुआ घोषित करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जय।